کرتی ہوں، ان کے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ زخمیوں کو جلدی صحت یاب کرے۔ بہت افسوسناک واقعہ ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے سن کر، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس میں بہت سارے پولیس اہلکار جو ہیں وہ پلیز ایک سیکنڈ اور اس میں بہت سارے جو پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ان دا لائن آف ڈیوٹی وہ شہید ہوئے ہیں۔ میں ان شہداء کو، پولیس آفیسرز کو، پولیس کے نوجوانوں کو جو وہاں اپنے ذمہ داریاں فرض ادا کرتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے عوام اور قوم کو ان پر فخر ہے۔ پولیس کے جو ڈیوٹی ادا کرتے اپنے فرائض کے دوران جو اہلکار شہید ہوتے ہیں، ان کو وہ عزت اور مقام نہیں ملتا، ان کو جاں بحق کہا جاتا ہے۔ وہ قوم کے شہداء ہیں، قوم کے بیٹے ہیں، ان کو وہی اسٹیٹ فیونرلز ملنے چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں، ان کی قربانیوں کو بھی اتنا ہی ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے جس کے وہ حقدار ہیں۔ وہ ان سنگ ہیروز ہوتے ہیں۔ میں پاکستان کی پولیس کو، لاہور کی پولیس کو، جنہوں نے آج اپنی جانیں دی ہیں، زخمی ہوئے ہیں اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور قوم سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ان کی قربانیوں کو سراہیں، ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں۔ وہ بھی قوم کے بیٹے ہیں جو اس مٹی کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے۔ اچھا میڈم، کل ملاقات ہوئی ہے آصف زرداری صاحب کی پرویز الہی سے، اس سے قبل تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، صرف یہ کہہ کے کہ ان کی بے نظیر تھے، لیکن پرویز الہی وہ ہے جن کے متعلق بے نظیر انہوں نے خدشات کا اظہار کیا، تو اس آپ پولیٹیکل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو آپ کیسے؟ نہیں، میری بات سنیں، میٹنگز اگر ہو رہی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ ملنے دیجیے، میٹنگز چلتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے پوچھا تھا کہ کیا اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پاکستان اپنا نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کر لے گا؟ جو یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت ہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس اسٹیٹمنٹ کو یا اس اسٹیٹ آف مائنڈ کو یا ایک ایسے انسان کو میں کیا نام دوں یا کس طرح سے اس کو کنسٹرو کروں جس نے اتنی عجیب بات کی ہے۔ اور جو کسٹوڈین، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ سلیکٹڈ ہے، یہ عوام کا نمائندہ وزیر اعظم نہیں ہے، یہ عوام کے ریپریزنٹیٹو پرائم منسٹر نہیں ہیں، ان کو عوام کے سر پہ چوری کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے، اور ان کو کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ عوام نے اپنی قربانیوں کے بعد جو ایک سٹیٹس حاصل کیا ہے ایٹمی قوت ہونے کا، اس کے اوپر یہ کوئی کامنٹ بھی کر سکے۔ یہ اس کے کسٹوڈین نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے، جو جوہری پروگرام ہے، عمران خان سلیکٹڈ اس کا کسٹوڈین نہیں ہے، اس کے کسٹوڈین 22 کروڑ عوام ہیں، اور اس کو عمل میں لانے کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے آج پاکستان جو ایٹمی طاقت ہے اس کے لیے بہت قربانیاں قوم نے بھی دی ہیں، پاکستان کے منتخب نمائندوں نے بھی دی ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے، اور میاں نواز شریف جو ایٹمی دھماکے کے جن کے صحرا جن کے سر ہے، انہوں نے جلاوطنی اس کے لیے برداشت کی، آج تک وہ اس چیز کا نشانہ بن رہے ہیں۔ لیکن میں ایک آپ کو بتا دوں، کشمیر کا تو نام آپ کو لینا ہی نہیں چاہیے۔ کشمیر کا سودا آپ کر کے آئیں۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے کر آپ کوئی نئی ڈیبیٹ کھڑی کر دیں گے تو آپ یہ غلط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ 22 کروڑ عوام کا اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا، پاکستان کے نوجوانوں کی حفاظت کا، اس مٹی کی حفاظت کا، اس ملک کی حفاظت کا، اس کی سیکیورٹی کا ضامن ہے۔ اور اگر وہ ایٹمی پروگرام نہ ہوتا، وہ ایٹامک ڈیٹرنس کریٹ نہ ہوتی، تو آج مسئلہ کشمیر کے علاوہ بہت سارے ایسے مسائل کھڑے ہو جاتے جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا
इशू बन सकते थे। तो ये पाकिस्तान की हिफाजत का ज़ामिन है आने वाले वक्तों के लिए, आने वाले नस्लों के लिए। इसके ऊपर आपको एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को इस किस्म का बयान देने का कोई हक नहीं। मरियम, इमरान खान ने जो खवातीन के लिबास के हवाले से कमेंट किया है और कहा है कि ये रेप के वाक़यात खवातीन के लिबास की वजह से होते हैं, तो आप उस पर क्या कहें? देखिए, जो बात इमरान खान साहब ने की है वो इन इट सेल्फ एक मुजरिमाना सोच की अक्कास है। उन्होंने ये बात करके कौम को ये बताया है कि उनके दिल के अंदर और दिमाग के अंदर किस किस्म की सोच के वो हामिल रहे हैं और किस किस्म की वो सोच रखते हैं। आप सोचें कि जो इंसान रेप को वैलिडेट करता है या रेप जैसे घिनौने जुर्म को वो मुजरिम को कहता है कि मुजरिम जो है वो जिम्मेदार नहीं है बल्कि मजलूम जिम्मेदार है, तो रेप अपॉलोजिस्ट जो हैं इनकी जान, इनके जो इस किस्म की सोच है उससे पाकिस्तान को आज़ादी चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे दिल को इसलिए तकलीफ़ हुई कि जो छोटे बच्चे ज़्यादती का निशाना बनते हैं, जो छोटी बच्चियां जैसे वो ज़ैनब थी, या वो जो मोटरवे पे खातून जिनका रेप हुआ उनके बच्चों के सामने, क्या वो इसलिए हुआ कि उन्होंने कुछ गलत कपड़े पहने हुए थे? आपको शर्म आनी चाहिए इस किस्म की बात करते हुए कि आप मुजरिम को वैलिडेट कर रहे हैं और मजलूम को उसका इल्ज़ाम दे रहे हैं। इसके लिए भी बहुत ही पस्त सोच की आई थिंक वो पस्त सोच है जिसकी उन्होंने अक्कासी की है। मैं इस पे भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती हूँ। आपके बारे में ये सुना था कि आप ख़वातीन को तनकीद का निशाना बनाते हैं या उनके बारे में गलत ज़बान इस्तेमाल करते हैं। आज आपने जिस तरह से उन रेप विक्टिम्स की तौहीन की है, आप सोचें कि जिनके वालिदैन के छोटी छोटी बच्चियां, वो ज़ैनब फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका जो रेप हुआ था, कत्ल हुआ था, उसके वालिदैन या और कोई जो विक्टिम्स हैं उनके वालिदैन को आज जितनी तकलीफ़ पहुंची होगी कि बजाय इसको कि उनको इंसाफ मिलता, उनके बच्चों को या उन ख़वातीन की फैमिलीज़ को आज ये शर्म आ रही होगी और तकलीफ़ हो रही होगी कि उन्हीं को विक्टिम्स को आपने जो है वो ज़िम्मेदार करार दे दिया। ये बहुत बुरी सोच है और इसका खात्मा पाकिस्तान में ज़रूरी है। ये बताइएगा कि एक तरफ इमरान खान जो है अमेरिका को अपनी हवाई अड्डे देने से इनकार कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोटरवे और तमाम हवाई अड्डे उन्होंने कल मंजूरी कैबिनेट ने किया, आप क्या समझते हैं? फिर मैं यही बात करूँगी कि आपने तो तारीख़ के बुलंद तरीन लेवल तक आप पाकिस्तान के कर्ज़ों को ले गए हैं और उन कर्ज़ों के एवज़ पूरे पाकिस्तान के अंदर मुझे एक ईंट भी आप दिखा दें जो आपने लगाई हो। जब आप पाकिस्तान की तरक्की में एक ईंट का इजाफा नहीं कर सके तो आपको किसने ये हक दिया कि आप पाकिस्तान की मोटरवेज़ को, पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को जो कि कौम की अमानत है, पाकिस्तान के बड़े बड़े मंसूबों को आप गिरवी रखें? और आप तो कंटेनर पे चढ़ के तकारीर किया करते थे ना कि मेरे पास 200 माहरीन की टीम है और हमारा होमवर्क मुकम्मल है और हमारे पास हम 9 दिन में तब्दीली ले आएंगे, हम 1 महीने में तब्दीली ले आएंगे और हमारे पास एक पूरा प्लान है। सबसे पहले तो आपका तीसरा बजट आपके चौथे वज़ीर ख़जाना ने पेश किया है और उसके बाद ये थी आपकी माहरीन की टीम, ये थी आपका होमवर्क, ये था आपका प्लान कि पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ की अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की खिदमत है। आप कहा करते थे कंटेनर पर चढ़कर कि सड़कें बनाने से, मोटरवेज़ बनाने से, मंसूबे लगाने से तरक्की नहीं होती, तो उन्हीं मंसूबों को आज गिरवी रखने से कौन सी तरक्की हो रही है? कौम ये जानना चाहती है कि सबसे पहले तो इस बात का जवाब दिया जाना चाहिए कि हमेशा मुल्क जो हैं वो मंसूबे लगाने के लिए कर्जे लिया करते हैं। कर्जे लेकर आवाम की जो अमानत मंसूबे हैं उनको गिरवी नहीं रखा करते। तो मुझे ये बताएं कि कौन आज आपके अताब से बचा है? क्या आपने कौम के लिए छोड़ा है? गरीब की रोटी से लेकर, उनके मंसूबों से लेकर, उनके चैन और सुकून से लेकर, कश्मीर से लेकर, क्या चीज़ आपके नाअहली, नालायकी और
मुजरिमाना गफलत से बची है। और आज आप जब कह रहे हैं कि मोटरवेज और जो एयरपोर्ट्स हैं आप उनको गिरवी रखेंगे, तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ का इतराफ़ करते हैं कि नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कौम के लिए इतने बड़े बड़े मंसूबे लगाए कि जिनको गिरवी रखकर आज आप कर्जे लेने की बात करें। तो ये तो इस चीज़ का इतराफ़ है कि नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए इतने बड़े बड़े काम किए। और अभी चंद साल पहले, ज़्यादा दूर नहीं है, 2018 का इलेक्शन से पहले, ये पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली तो 2018 के बाद जब ये नाअहल को मुसल्लत किया गया है उसके बाद शुरू हुई है। उससे पहले आप ये देखें कि 5 साल में यही पाकिस्तान था, यही पाकिस्तान के रिसोर्सेज थे। और नवाज शरीफ ने माशाअल्लाह उन 5 सालों के अंदर, अपने टेन्योर के अंदर इतनी तरक्की पाकिस्तान की लोड शेडिंग के मंसूबे ख़त्म करने के मंसूबे लगाए, इतने बड़े बड़े प्लांट्स लगा दिए बिजली बनाने के 2-3 साल के अंदर, मोटरवेज का जाल बिछा दिया, इतने बड़े बड़े सीपैक के प्रोजेक्ट्स आए पाकिस्तान के अंदर। तो उस वक्त तो पाकिस्तान को गिरवी नहीं रखा हमने। और आज आप नवाज शरीफ के बनाए हुए अवाम के मंसूबों को आप गिरवी रख रहे हैं। पहले तो कौम को वो हिसाब चाहिए कि जो आपने कर्ज़ों के बोझ के नीचे, तारीख़ी कर्ज़ों के बोझ के लिए नीचे कौम को दबा दिया है, पहले तो उसका हिसाब दें कि वो कर्ज़े आपने खर्च कहाँ किए हैं। और ये कर्ज़े जो आप ले रहे हैं ये माफियाज और कार्टल्स को नवाजने के लिए, आपको पता है ना, शुगर माफिया, आटा माफिया, दवाई माफिया, LNG माफिया, और ये जो रिंग रोड के आपके सामने स्कैंडल आया है कि अपने ही लोगों को, अपने ही वज़रा को नवाजा है। उन्होंने 1400 कनाल वहाँ पर ज़मीन बेची है, ख़रीदी है, और उसको उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है। और जब वो बात मंजर आम पे आती है तो आप रातों रात अपने जो मेंबर्स हैं, अपने जो पार्टी के अरकान हैं, ओहदेदार हैं, हुकूमत के ओहदेदार हैं, आप उनको रातों रात मुल्क से फरार करा देते हैं। तो इन कार्टल्स के लिए, इन माफियाज के लिए आपने कर्जे लिए, शर्म आनी चाहिए। एक एक करके 4 बैंकों ने जो कर्जे हैं बास शख्सियात की वो माफ कर दी और वो अरबों रुपए में बनते हैं। तो इसके मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? कोई तहकीकात होनी चाहिए। सॉरी, आप जरा फिर बताइए। 4 ऐसे बैंकों ने जो बास शख्सियात के जो कर्जे हैं जो अरबों रुपए में बनते थे उनको माफ कर दिया है मौजूदा दौरे हुकूमत में। तो क्या मुस्लिम लीग नून का तहकीकात? मैंने अभी आपको यही बात की कि जो उनको हुकूमत को चलाने में, हुकूमत को, ये मरी हुई हुकूमत को जो वफात पा चुकी हुई है बहुत साल पहले, उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको चलाने के लिए उनको जिन जिन कंधों की ज़रूरत है, जिन जिन लोगों की ज़रूरत है, उनको बचाने के लिए वो पूरे पाकिस्तान को दाव पे भी लगा सकते हैं, उसके असासे गिरवी भी रख सकते हैं। लेकिन उनको, चाहे वो पिज़्ज़ा बनाता हो या वो रिंग रोड का कोई हो, उसको, या वो कोई आटा या चीनी माफिया का, उसको NRO देने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि इनकी गिरती हुई हुकूमत बरकरार रहे। लेकिन पाकिस्तान अब अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के लोग रोटी से लेकर, गैस से लेकर, बिजली से लेकर, पेट्रोल से लेकर, और अब वो इस किस्म की चीज़ों को फेस कर रहे हैं। तो ये हुकूमत, अल्लाह ताला इसकी जान जल्दी पाकिस्तान से छुड़ा दे ताकि लोग सुकून का सांस लें इंशाअल्लाह। जो आप BBC बुला रहे हैं, हुकूमत का ये कहना है कि वो पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश है, उसमें बैठे लोग गैर पार्लिमानी लोग हैं, जिस पर आप क्या कहें? देखिए, इस हुकूमत का ना पार्लियामेंट से कोई ताल्लुक है, ना पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ से उनका ताल्लुक है। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं, ये पार्लियामेंट में पैराशूट के ज़रिए आए हैं, लाए गए हैं। इसलिए मैं इनको पार्लियामेंट की किसी भी चीज़ में या मुंतखब हुकूमत नहीं समझती, या इनको डेमोक्रेसी में हिस्सेदार नहीं समझती, या ये पार्लियामेंट में स्टेक होल्डर्स नहीं हैं। इनके स्टेक्स कहीं और जुड़े हुए हैं। इनको पार्लियामेंट के बारे में बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि अवाम का वोट चोरी करके अवाम के सिरों पे मुसल्लत है, जिनकी वजह से आज अवाम जो है वो पिस गई। आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को कौन लीड करेगा? मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह जी। लास्ट क्वेश्चन। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी हैं, मुझे भी गुफ्तगू जब करनी होती है तो मैं शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से गुफ्तगू करती हूँ, उन्हीं से इजाज़त लेती हूँ।
तो अगर वो पार्टी प्रेसिडेंट से बात करेंगे तो सही करेंगे, क्योंकि वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैडम मियां साहब कब पाकिस्तान आ? इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुलाती हूँ इंशाल्लाह। मरियम नवाज गुफ्तगू कर रही थी और उनसे सवाल पूछा गया कि नवाज शरीफ वापस कब आएंगे, तो उन्होंने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा कि आप गारंटी दें कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा तो शाम की ही फ़्लाइट से नवाज शरीफ को वापस बुला लेंगी। मरियम नवाज ने साथ ही कहा कि ये पार्लियामेंट में पैराशूट के ज़रिए आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाया। कहा, मैं इस हुकूमत को जमहूरियत में हिस्सेदार नहीं समझती, आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को नवाज शरीफ लीड करेंगे।